Hello, dear students of class first year. Assalamu alaikum. Good afternoon. Today we are going to begin a very important and inspiring chapter, Responsibilities of Youth in Nation Building. This chapter is based on the ideas and vision of Muhammad Ali Jinnah, who believed that youth are the real strength and future of the nation. Before we start the lesson, I want you all to think about one question. What makes a nation strong? Is it only buildings, roads, and technology? Or is it the people, especially the young generation, who make a country successful through their hard work, honesty, education, discipline, and unity? Students, youth are considered the backbone of every nation because they have energy, fresh ideas, courage, and power to bring change. The progress or failure of a country largely depends on its young people. If the youth are educated, responsible, and hardworking, the nation moves towards success and prosperity. But if the youth become careless and irresponsible, the nation suffers. In this chapter, we will study how Muhammad Ali Jinnah advised students and young people to prepare themselves not only for personal success but also for the service of their country. He wanted the youth to develop qualities like discipline, self confidence, character, and a spirit of sacrifice. He emphasized that the young people should not depend completely on government jobs. Instead, they should become confident, skilled, and productive citizens who contribute positively to society. As students of class first year, this chapter is especially important for you because you are at a stage where your decisions, habits, and goals will shape your future and also the future of Pakistan. While reading this lesson, try to connect its ideas with your own life and think about how you can play your role in making your nation stronger and better. Now, let us begin the chapter and explore the more valuable message given to the youth of Pakistan. This lesson is taken from the speech of Muhammad Ali Jinnah delivered at the University, Dhaka University convocation uh, on 24th March 1948. So, before starting the chapter, I want to tell you that before we continue the chapter, keep in mind that the question answers from this lesson are very important for your exams because they carry 30 marks. स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, all these questions carry 14, 10 and then 6 marks. Definitely your 30 marks are very important here regarding the text. The next question here is you need to focus on this question number 7b part. Sorry, it's B part. You need to focus on the punctuation. So punctuation, that is the correct use of full stops, commas, capital letters, question marks, etc. You need to pay attention on this question also while reading the text. And the most important question is question number 8. You may look at these question number 8 carry 15 marks. That is very important for you to take good marks in this question when you will pay full attention to the text. So read the lesson carefully to improve comprehension, pronunciation, and prepare the important lines and difficult vocabulary from English to Urdu. इसीलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. फॉर एग्जांपल दीज आर प्री रीडिंग एक्टिविटी मींस प्री रीडिंग क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर गिवन है जहाँ पर ऑलरेडी यू नो वेरी बेटर जिन्ना कौन थे या उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन सी थी या फिर वो यूथ से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते थे. ये वो तमाम क्वालिटी, ये वो तमाम मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर आगे रीड करने जा रहे हैं. दीज आर द प्री रीडिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक. तो ये भी एग्जाम्स में आपके पास आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1. वट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. डेफिनेटली आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान के बानी थे, एक बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर थे, इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर थे और जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को सक्सेस की तरफ स्टेयर किया, यानी वो लेकर गए. और उनकी तमाम फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को लाइक यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, वो तमाम सेलिब्रेट किए जाते हैं.
The next question, what kind of leadership qualities is he remembered for? Then you should know कि यहाँ पर हम देखते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एब्सोल्यूट ऑनेस्टी की वजह से, स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन। अब ये स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन क्या है? एक ऐसा डिसिप्लिन जो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन पर बेस करता हो, रूल्स पर बेस करता हो, ऑर्डर पर बेस करता हो। यानी इसका ये मतलब है कि अपना काम लोग एक प्लान्ड और कंट्रोल्ड वे में कंप्लीट कर रहे हैं, तमाम उस स्ट्रक्चर और सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर काम चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन, जो कि कायदे आज़म में मौजूद थी चीज़ और वो याद किए जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ वी कैन से अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड लीगल एक्सपर्टीज थे। इसके अलावा एलोक्वेंस किसे कहा जाता है? एलोक्वेंस मोहम्मद अली जिन्ना जो भी बोलते थे वो इतना इफेक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग था, पावरफुल एंड क्लियर स्पीकिंग वे था, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों को बहुत इंस्पायर किया और वो इन्फ्लुएंस्ड किया। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक जिन्ना एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान? यूथ से वो क्या एक्सपेक्ट करते थे कि वो कम्प्लीटली तौर पर अपनी एजुकेशन पर फोकस करेंगे और हाईली डिसिप्लिन रहेंगे, एक्टिवली ट्रांजिशन अवे फ्रॉम अ डिपेंडेंट कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल माइंडसेट की बात की जा रही है कि वो ऐसे माइंडसेट से बिल्कुल दूर रहेंगे जो कि फॉरेन रूलर्स पर डिपेंड कर रहा होगा, या उनके माइंड में सिर्फ ये होगा कि गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे और बिकम इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल। इस अंदाज में आगे चलकर वो एक बिल्ड कर सकते हैं नेशन को, जो कि मज़ीद उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम थीम की अगर बात कर लें तो यहाँ पर बुक में आपको थीम गिवन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। डेफिनेटली ये बातें हम बार बार इस चैप्टर में रिपीट होती रहेंगी कि उनका सेंट्रल थीम वही था कि नेशन बिल्डिंग के मुताबिक नेशन बिल्डिंग किस तरह से पॉसिबल है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एंड पर्पसफुल एजुकेशन से हो सकती है। और यंग ग्रेजुएट से यहाँ पर, जैसा कि आपको पहले बताया कि कॉन्वोकेशन से वो एड्रेस कर रहे हैं, तो जिन्ना अर्ज करते हैं किस चीज़ पर कि यूथ को रिकॉग्नाइज कर लेना है किस तरह से फ्रीडम के साथ आपने अपनी लाइफ को स्पेंड करना है और इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट कहते किसे हैं, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब उन पर आ चुकी हैं वो उनको किस तरह से फुलफिल करनी है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ पर बार बार एम्फसाइज किया कि डिसिप्लिन, यूनिटी एंड हार्डवर्क बहुत ही ज़रूरी हैं, और इसी अंदाज से उन्होंने यूथ को इनक्रेज किया है कॉलोनियल मेंटालिटी से वो दूर रहें, यानी एक मोनोटोनस जो चीज़ चल रही है उस चीज़ से वो दूर रहें, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे मत भागें, बल्कि इसकी बजाय उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ लाइक डिफरेंट फील्ड्स में, जो कि कॉमर्स हैं, इंडस्ट्री, लॉ, टेक्निकल एजुकेशन। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स। ये स्पीच हाईलाइट कर रही है कि एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन होना चाहिए नेशन डेवलपमेंट में, और इसके अलावा कॉम्प्लेसेंसी के लिए वो हमें यहाँ पर वॉर्न करते हैं। कॉलोनियल मेंटालिटी को अगर हम देख लें तो कॉलोनियल मेंटालिटी एक ऐसा वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें पीपल हमेशा मेंटली डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेन रूलर्स पर, और वो चाहते हैं कि वो उनको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते रहें और इसी तरह अंदाज में वो इस चीज़ को लेकर चलते रहें। लेकिन यहाँ पर हमें कायदे आज़म इस चीज़ से मना कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ उनको इन्फीरियर बना देगी, बल्कि इसकी बजाय उन्हें खुद कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। यूथ के लिए ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दे शुड बी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। सो द नेक्स्ट थिंग इज हियर कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी मीन्स एक ऐसी फीलिंग जो कि इंसान को जहाँ वो मौजूद है उसी अंदाज में उसको सेटिस्फाइड रखे और वो को बिल्कुल भी इम्प्रूव करने की कोशिश ना करे, या अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा से इग्नोर ही करता रहे। तो ये चीज़ जो है वो इसके अगेंस्ट है, कायदे आज़म ने अपनी यूथ को किया था। और उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए, मीन्स के कोई भी ऐसा उनसे एडवांटेज कोई ना उठाना चाहे, पर्सनल बेनिफिट उनसे ना लिया जाए, और अक्सर जो कि उनके लिए बहुत ही अनजस्ट वे में होगा या उनके लिए हार्मफुल होगा, तो उनको ये चीज़ यूथ को अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन उनका गलत फ़ायदा उठाना चाह रहा है और उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। So before starting the chapter, look at these question answers. These question answers are from the exercise of this chapter. अगर हम इसको रीड कर लेंगे तो हमें टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो क्वेश्चन आंसर्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बेसिक चीज़ हम देखते चले जाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिस्क्राइब की है कायदे आज़म ने, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के साथ आई थी,
और किस तरह से उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी वहाँ के उसकी इम्प्लीकेशंस थी, जो भी उसके साइंस थे, उसको किस तरह से कायदे-आज़म ने स्ट्रेस किया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक ऐसा कंट्रास्ट डिस्कस करना है कि किस तरह से मिलिटेंट स्पिरिट काम करती है प्री इंडिपेंडेंस डेज की, और किस तरह से अब उन्हें कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट रिक्वायर्ड है, जो कि उनकी अपनी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है, उसके लिए कौन सी कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट उनके अंदर होनी चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान में कंट्रास्ट किस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, हम इन क्वेश्चन आंसर्स को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ें माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है टेक्स्ट को रीड करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीकर का मेन आइडिया यूथ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड क्या है। इकोनॉमिकली वो किस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं और किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यही इंटरेक्शन उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा, स्ट्रेंथन कर लेगा, और ये मैसेज हमें टेक्स्ट में दिया गया है, तो आपको वो कहा गया है कि अब आप ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये मैसेज डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आप वो सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करें जहाँ पर स्पीकर जो है वो एक तनकीदी नज़र से देख रहा है कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को, और कैसा माइंडसेट जो है वो अब स्टूडेंट्स में होना चाहिए, उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कायदे आज़म डिस्करेज कर रहे हैं कि सिर्फ आपने गवर्नमेंट सर्वेंट को ही परसू नहीं करते रहना, बल्कि आपका एक सोल एम्बिशन क्या होना चाहिए ग्रेजुएट्स का, उसको डिस्कस किया जाएगा टेक्स्ट में, वही आपने यहाँ पर आंसर में मेंशन करना होगा। इन क्वेश्चन नंबर 6 कायदे आज़म क्या कहना चाह रहे हैं जब वो बात करते हैं कि फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप क्या होता है जब इसको सेल्फ रिलायंस के आइडिया के साथ या करियर डाइवर्सिफिकेशन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, तो इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है। कायदे आज़म किस तरह से ये चीज़ें अपनी स्पीच से यूथ में डेवलप करना चाह रहे हैं, वी विल डिस्कस दिस थिंग हियर। और लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्पीकर के आर्गूमेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, और क्या कैसा वो डाइवर्सिफिकेशन देखना चाह रहे हैं अबाउट द माइंडसेट ऑफ यूथ, ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो कम टू द ट्रांसलेशन नाउ। Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. मिस्टर चांसलर, ख़वातीनो हज़रात, जब वाइस चांसलर की जानिब से इस दरख्वास्त के साथ मुझसे रब्ता किया गया कि मैं तकरीब असनाद का ख़ताब करूं, टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस, तकरीब असनाद का ख़ताब करूं, आई मेड इट क्लियर टू हिम, मैंने उन पर यह वाज़ह कर दिया दैट देयर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी, कि मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, दैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर, कि मुमकिन तौर पर मैं तैयार नहीं कर सकता अ फॉर्मल कॉन्वोकेशन एड्रेस, एक रस्मी कॉन्वोकेशन ख़ताब या तकरीब असनाद का ख़ताब तैयार नहीं कर सकता ऑन एन एकेडमिक लेवल, तालीमी सतह पर, कि मैं तालीमी सतह पर एक रस्मी तकरीब असनाद का ख़ताब तैयार नहीं कर सकता उन अजीम मज़ामीन से मुताल्लिक जिन्हें यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, जैसा कि फ़नून, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून और इस तरह से। तो मैंने उन पर यह बात वाज़ह कर दी कि वो अजीम मज़ामीन जो कि यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, जैसा कि फ़नून, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून और ऐसे, उनसे मुतालिक तालीमी सतह पर मैं एक रस्मी कॉन्वोकेशन ख़ताब तैयार मुमकिन तौर पर नहीं कर सकता। And I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. मैंने I did, however, ताहम, मैंने ताहम, promise to say, चंद अल्फाज, few words, चंद अल्फाज कहने का वादा कर लिया तालिब इल्मों से ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर। मैंने ताहम इस मौके पर तालिब इल्मों से चंद अल्फाज कहने का वादा कर लिया, एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट, और ये उसी वादे की तकमील है, दैट आई विल एड्रेस यू नाउ, जो मैं अब आपसे खिताब करूँगा।
First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me, Vice Chancellor. सबसे पहले मुझे वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करने दीजिए उन तारीफी कलमात के लिए जिसका उन्होंने मेरे बारे में जिक्र किया। जिन तारीफी कलमात में उन्होंने मेरा जिक्र किया, सबसे पहले मुझे वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा कर लेने दीजिए। मिस्टर वाइस चांसलर, वट एवर आई एम एंड वट एवर हैव बीन एबल टू डू। मिस्टर चांसलर, मैं जो भी हूँ या मैं अब तक जो भी करता रहा हूँ, मैं जो भी करने के काबिल रहा हूँ, आई हैव डन इट मेयरली, मैंने ये महज एक जिम्मेदारी के तौर पर, एक कार्रवाई के तौर पर किया है। एज अ मेजर ऑफ ड्यूटी, एक कार्रवाई के तौर पर मैंने महज किया है। विच इज़ इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान, जो कि लाजिम है हर मुसलमान पर। इनकम्बेंट मीन्स एक ऐसा शख्स जो कि किसी ओहदे पर फाइज हो, डेट इज ऑल्सो इनकम्बेंट, बट हियर वी आर यूजिंग इट एज एन एसेंशियल। हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने लोगों की ईमानदारी और बेलौसी से खिदमत करे। These are wild reading questions. Look at this first question. कायदे आज़म एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं अपनी स्पीच की नोयत के बारे में। स्टार्ट में ही उन्होंने कहा कि मैं किस तरह की स्पीच करने जा रहा हूँ, तो वो कैसी उन्होंने नेचर एक्सप्लेन की है। सेकेंडली, उनकी क्या प्रायोरिटीज नज़र आ रही हैं, यहाँ पर हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। एंड द आंसर इज द नेचर ऑफ कायद स्पीच शोज कि उनकी स्पीच जो है वो इतनी ज़्यादा फॉर्मल या एकेडमिक नहीं है अभी, जैसा कि हमने पैसेज में देखा। रादर इज सिंपली वांट्स टू शेयर अ फ्यू सिंसियर वर्ड्स विद द स्टूडेंट्स। और इससे ये चीज़ इंडिकेट होती है कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, अपने ही केयर डीपली अबाउट गाइडिंग द यूथ, एंड हिज मेन प्रायोरिटी वाज टू स्पीक ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state, but as a friend and as one who has always held you in affection. In addressing you, आपसे मुखातिब होते हुए, I am not here speaking to you, मैं आपसे बात नहीं कर रहा as head of the state, बतौर ममलिकत, सरबराहे ममलिकत के तौर पर मैं आपसे बात नहीं कर रहा, but as a friend, बल्कि एक दोस्त के तौर पर बात कर रहा हूँ, and as one, और एक ऐसे शख्स की हैसियत से who has always held you in affection, जिसने हमेशा आपके लिए मोहब्बत रखी है। Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. आप में से बहुत से लोग आज अपने डिप्लोमे और डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, and I congratulate you, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। Just as you have won the laurels in your university and qualified themselves yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. जैसा कि अभी अभी आपने वो तमाम कामयाबियां हासिल कर ली हैं इन योर यूनिवर्सिटी, अपने जामिया में वो तमाम आप कामयाबियां हासिल कर चुके हैं, एंड क्वालिफाइड योरसेल्व्स, और ख़ुद को तालीम याफ्ता कर चुके हैं। सो आई विश यू ऑल सक्सेस, इसलिए मैं आई विश ख्वाहिशमंद हूँ आपके लिए तमाम कामयाबियों का। इन द वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड, इस वसी और बहुत बड़ी दुनिया में कामयाबियों के लिए मैं आपका ख्वाहिशमंद हूँ। दैट यू विल एंटर, जिसमें अब आप दाखिल होंगे या जिसमें अब आप कदम रखेंगे। जैसा कि आप लोग अभी अभी इस जामिया से अपनी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं और ख़ुद को तालीम याफ्ता कर चुके हैं, इसलिए मैं इस वसी और बड़ी दुनिया में आपके लिए कामयाबियों का ख्वाहिशमंद हूँ जिसमें अब आप दाखिल होंगे। Many of you have come to the end of your scholastic career. आप में से बहुत से लोग अपने तालीमी कैरियर में के इख्तिताम पर अब पहुंच चुके हैं और स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के चौखट या दहलीज पर खड़े हैं। अनलाइक योर प्रेडेसेसर्स फोरफादर्स, अपने पेशरुओं के बरक्स, अनलाइक बरक्स, यू फॉर्चुनेटली, आप खुशकिस्मती से इस जामिया को छोड़ेंगे टू एंटर लाइफ, एक ऐसी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए छोड़ेंगे, अंडर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन, जो कि आपकी अपनी एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। खुशकिस्मती से आप अपने पेशुओं के बरक्स इस जामिया को अपनी
आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत में दाखिल होने के लिए छोड़ेंगे. It is necessary that you and your other fellows fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. ये ज़रूरी है कि आप और आपके दूसरे साथी तालिब-इल्म मुकम्मल तौर पर उन इशारों को, उन पोशीदा बातों को समझें, अलामतों को समझें, उस इनकलाबी तब्दीली की. इस इनकलाबी तब्दीली के तमाम पोशीदा मकासद को आप और आपके दूसरे साथी तालिब-इल्म समझें. ये ज़रूरी है जो क़याम पाकिस्तान के वक्त रूनुमा हुई. We have broken the shackles of slavery. We are now a free people. हम गुलामी की जंजीरों को, हथकड़ियों को तोड़ चुके हैं. हम अब आज़ाद लोग हैं. Our state is our own state. हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है. Our government is our own government. हमारी हुकूमत हमारी अपनी, हमारे अपने लोगों की हुकूमत है. Responsible to the people of the state, जो कि रियासत के लोगों की जिम्मेदार है या उनकी जवाबदेह है. एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द पीपल, और रियासत की भलाई के लिए काम कर रही है. So that was passage number 2. Look at this second question of while reading. How does the speaker's tone reflect his expectations of the graduates? अब वो ग्रेजुएट्स की एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट किस टोन से कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि उनकी फीलिंग्स उनकी फ्यूचर के बारे में किस तरह से हैं. लुक एट द आंसर. स्पीकर्स टोन बहुत सिंसियर और फ्रेंडली नज़र आ रही है और फुल ऑफ होप है. इसके अलावा वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं दैट ही स्पीक्स विद केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स. ऐसा नज़र आता है ही वॉन्ट्स देम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स. डेफिनेटली वो उनको हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स के तौर पर देखना चाह रहे हैं, और हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनका उनके पोटेंशियल पर, यानी यूथ का के पोटेंशियल पर बहुत ज़्यादा फेथ है, और इसीलिए वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक बहुत ही एक्टिव और वाइटल रोल प्ले करेंगे इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान.